My first question is, considering the current situation of regarding women's safety, what is your assessment of current status of women's safety in our city, that is Chhatrapati Sambhajinagar? Additionally, what specific initiatives or programs have been implemented to address women's safety concerns? Thank you for such a wonderful question. Women's safety, Maharashtra Police, I'll say, we have several schemes for the women's safety. We have Bharosa Cell, we have Damini Patak in the city, where vehicle basically it patrols the areas of. You must have also seen Damini Patak in your area. It patrols a particular institute area, coaching area. We have Bharosa Cell, where a women, if she has complaints about ill treatment by her in-laws, her family members, we counsel them. And these incidents which you have just discussed, let me tell you, these incidences, they reminds us that women's safety is such an important issue which police and which government should look after. It in 2012 also the nation reminded us, and that time I was at different side. That time I was just like you, and my blood also boiled. Ki what police are doing. But let me tell you some practicalities what we have because these things they don't come in media, and these are the practical sites. Whatever rape numbers or molestation or 354 numbers which we are seeing, it would be wrong to say, but let me be a bit polished. The actual numbers in reality are lesser than what we see in the picture. But those things police cannot tell you. Those things we cannot officially tell you, but because whatever complaint we are receiving, we have to register it. But the actuality is different. For Maharashtra police, I can say you, and for other police, I don't have a fair idea. For Maharashtra police, I can say you with guarantee, if we see any case as genuine, we devote our life into that case. As I told you in Tuljapur, when I got to address that Tuljapur incident where a 6-year-old was molested, we invested our 100% energy that that person was convicted within 6 months. That was in record time. So everywhere, like here, I'll tell you an incident here. This incident happened with a lady. She was from Bihar. Now a person from Bihar will not have any local political contact, any contact with the local bureaucracy. But I went personally to that place. I told them, ki never think you are outsider. You are a part of our country, and I'll make sure that person is behind bar within 24 hours. And within 24 hours, I deployed my entire machinery, and then within 24 hours, that person was arrested and put behind bar. So these are the incidences where we see a very genuine cases where we deploy our more than 100% energy. So let me say with proud that Maharashtra police is there to make our women secure, make our women confident. They don't have to bother about anything. My doors are always open. I have already initiated that QR code. Many women have met me already. Some women they come with a condition, ki, sir, don't tell my name to outside. I can totally understand the practicality, and I help them. And they go from my office satisfied. So I know that these incidences are happening, and nobody, I mean, I'm not a god, nobody can guarantee, nobody can give in writing that we can make it a complete stop, because incidences of 377, because this issues of women security and then the sexual harassment, it's basically, in my opinion, it's basically 360-degree issue. Police is just a part of it. You have to look for your family also. You have to look inside your family, how your brother, how your sister are treated, how your parents differentiate between you two, how your society differentiates between you two, how your institutes makes you feel different because of your gender. We have to introspect, and that introspection, when you will feel, then you will realize that policing is just a part of it. We have to change our thinking. We have to improve our value system. I have 2 daughters. Even my relatives, they said, "बेचारे की 2 लड़की हुई हैं." I said, "Who are you to tell me?
I am very happy with my 2 daughters. I am blessed to have 2 daughters. But imagine those guys which have such kind of mentality, what kind of teachings they will give to their son. And that son only will come out and do molestation with a girl. So we all have to change. Policing is just part of the society. I can help you once a crime has happened, or I can help you prevent a crime. But you guys can help me to put that crime to zero. We have to change our value system. So that I hope I answered your question. सर ज्यावेळेला एखादा क्राईम होतो आणि त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण होतं पण पोलीस डिपार्टमेंटला ती न्यूज एका विशिष्ट वेळेनंतर प्रेसला द्यायची पण त्या अगोदरच मीडिया तुमच्या मागे हात धुवून लागलाय तर ती सिच्युएशन तुम्ही कशी हँडल करता? चांगला क्वेश्चन आहे. राईट नाव आता तुमच्या बेसिकली तुमच्या टॉपिकमध्ये लिहिला पण आहे एथिक्स इन जर्नलिझम. राईट नाव यू गायज जर्नलिझम तुम्ही पण एक खूप प्रचंड कॉम्पिटिशनच्या एरियामध्ये आहे. ठीक आहे, वेगवेगळे न्यूज चॅनल, सोशल मीडिया पण आहे, प्रिंट मीडिया पण आहे, आणि आता तो नवीन जो आलेला आहे तुमच्या व्हॉट्सअप मीडिया आणि तुमच्या यूट्यूब मीडिया. तो प्रत्येक मीडिया पर्सनला घाई असते, आपल्याला काहीतरी नवीन टाकायचं लवकर. त्यांनी म्हणजे ते समोरचे माणूसने नाही टाकले पाहिजे, आपण लवकर टाकले पाहिजे. आणि ह्याच्या शेवटी जो नुकसान आहे ना, मी खरं सांगतो, नुकसान आपले देशचे नागरिक भोगतात. माझे पूर्ण करिअरमध्ये बरेचदा सच वेगळा आहे आणि मीडियामध्ये आलेला वेगळा आहे. आणि एकदा काही गोष्टी मीडियामध्ये आली तर त्याला रिव्हर्स करता येत नाही. ठीक आहे, मी इनडायरेक्टली 2-3 तुम्हाला एक्झाम्पल देणार. एक इन्सिडेन्समध्ये एक हिंदू मुलगीनी आत्महत्या केली होती आणि मीडियाने आम्हाला ना विचारता, तपास ना विचारता त्यांनी त्याला हिंदू मुस्लिम करार दिला की तो मुस्लिम कोणीतरी मुलगा आहे, तो त्यांना त्रास देतो त्यामुळे ह्यांनी आत्महत्या केली. नंतर तपासामध्ये निष्पन्न झाला की तसा कुठल्याही प्रकारचा इश्यू नाही. आणि आपला बेसिकली लव जिहाद तो अजिबात नाही त्यामध्ये. पण पॉईंट इज तोपर्यंत काय गाई भैंस पाणी में आता काय करू शकत नाही. तो यू हॅव टू एनी हाऊ हँडल इट. बट ते जो चुकीची न्यूज त्यांनी पब्लिश केली, व्हिडिओमध्ये टाकली, त्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्राचं वातावरण खराब झालं होतं. आणि असं वातावरण खराब होऊन तुम्ही स्वतः सांगा नुकसान कोणाचं? माझं नाही. मी तो ठीक आहे, मी गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, नुकसान लोकांचंच आहे. क्योंकि एक पक्ष हिंदू मुस्लिम करणार, नंतर त्यांच्यामध्ये भांडण होणार, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन होणार, शहरमध्ये कर्फ्यूचं वातावरण होणार, रास्ता जाम, चक्का जाम, किती लोकांची जॉबमध्ये परेशानी येते. सकाळी जाणारे येणारे मुलगा मुलगी जे शाळेमध्ये जाते त्यांना त्रास होतो. सकाळी जाणारे लोक जे काही व्यवसाय ते कंपनीमध्ये जॉब करायला जाते त्यांना त्रास होतो. कोणाच्या मेडिकल इमर्जन्सी असेल, कोणाला डिलिव्हरी करायची असेल, लवकर त्यांना हॉस्पिटलला पोहोचायचे, पण नंतर रोड तो जाम आहे. सी दे आर इनफायनाईट इश्यूज. एकदा आपण मतलब माझं काय मत आहे तुमच्याशी, माझा अनुरोध पण राहील, ॲज ए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तुमच्या जो न्यूज आहे तो व्हॉट एव्हर फॅक्ट्स, व्हॉट इज ट्रू, जे खरं आहे ते तुम्ही म्हणजे पब्लिश केलं पाहिजे. त्याला अननेसेसरी सत्य नसताना काहीतरी नवीन कलर दिले तो त्याचं नुकसान आपले सगळे लोकांना भोगावं लागतं. ठीक आहे, तो आम्हाला ते हँडल करण्यासाठी म्हणजे मीडियाशी आम्हाला कॉन्टॅक्ट साधावं लागते. बरेच मीडियाशी माझे पॉझिटिव्ह कॉन्टॅक्ट असते, बरेच निगेटिव्ह असते. तर त्यांना बोलावं लागते की भाई तुम्ही ॲटलीस्ट सच हे आहे, त्यांना दाखवावं लागते की सच हे आहे. आता तुम्ही त्यांना लोकांना तुम्ही सांगा, आम्हाला म्हणजे जो नेते लोक आहेत त्यांना पण सांगावं लागते की भाई सच हे आहे, लोकांना म्हणजे सच सांगा तुम्ही. आणि हळूहळू आम्ही व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून मीटिंग्स घेऊन मीडियाला बोलून, माझ्या पर्सनल इंस्टाग्रामवर मी कधी कधी व्हिडिओ पब्लिश केलेला आहे जे काय सच आहे त्याच्यासाठी. आपला सिटी पोलीसच्या आम्ही सिटी पोलीसच्या जो इंस्टाग्राम आणि फेसबुकच्या आमच्या हँडल आहे तिथे आम्ही स्वतःहून मीडियाचं काम करतात की आमचा जो वर्जन आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचू दे. ठीक आहे. How do you look at the media reports from the administration point of view? Media reports, policing is such a subject which is like interesting to everyone. Policing is such a subject which garners maximum TRP.
and people will like to read or people will like to see anything negative. Well, let me tell you, once I started this QR code system, I can guarantee you nowhere in the country anybody can tell you कि भाई give us a complaint, we will get back to you in 24 hours. Nowhere. Even I have never been heard like that. Never in my school, never in my college. You give us application, we'll see. That's the answer we get. I have initiated a system where you can give any complaint, and if that complaint is negative, I'll get back to you within 24 hours. And just like what we see in Flipkart and Amazon, okay, once you order a thing, you get a message in your phone, thanks for ordering. And a message from my office will get to you. Thank you for giving your feedback, DCP Zone 2 office. So that's the thing which I have started. But unfortunately, media has no interest in it. Because it will not garner TRP. They are not bothered about it. But had something happened otherwise, like a women sexual harassment or anything, where they can bring Hindu Muslim or any community conflict, there they will be happy to viralize it. So we also have to introspect कि what kind of news you want for your nation, what kind of society you want. You want that TRP kind of society or you want the actual peaceful society. So I'm sorry I got diverted. What was the question? How do you look at the media reports from the administration? Yes, so media, we have a license. In our policing, we have a good relation with media. So media reports when they are negative and when they are wrong, we always contact with the media persons, whoever the head of that particular news house is, and then we explain him ki you either modify this news because the real fact is this one. And most of the time in Maharashtra, we have a good culture ki media cooperates us, and whenever we tell them true facts, they definitely modify it and they try to detone it to unnecessary, not to unnecessarily create an issue in the society. We have a positive coordination with media. In every function, festival, we call them, and whatever we want to convey to the society, we convey to the society with the means of media. सर एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो महाराष्ट्र एंड बिहार इंडिया में दो स्टेट ऐसे जहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग पॉलिटिशियंस है, लेकिन हमें बाहुबली बनना है. दे ऑलवेज ट्राई कि हम पुलिस की एक हायर बॉडी पर अपना दबाव बना सके. लाइक अगर आईपीएस ऑफिसर कोई नहीं सुन रहा है उनकी बात, उसे रेड कंडक्ट करनी है. बहुत बार जैसे हमने फिल्म्स में देखा है कि वो उनके हायर बॉडी को कॉल करते हैं, वो हायर बॉडी फिर इन पर प्रेशर बनाती है. सर ऐसे इंसिडेंट्स अगर आपके साथ होते हैं या कभी आपने फेस किया है, आप इन बाहुबली पॉलिटिशियंस से कैसे टैकल करते हो या अपनी अथॉरिटी से जो आपको आपकी तरह काम करने से अगर कभी रोके? Keep in mind, we are living in a democracy. ठीक है, where we, every one of you, cast your vote, choose the government which you want to run the nation. So we only choose our politicians, we only choose our government, and we have a system from our constitution where the government decides who will be at the post of SP, CP, or whatever the collector, municipal commissioner. It's the state government which decides. So this is the constitutional procedure, constitutional mechanism which has been laid down for our nation, which is good because essence of democracy is what? We should rule ourselves. Okay? We will choose our government and they will rule us. They will give us the governance. Now, politics is totally different ball game altogether. That's why, because they are there for 5 years, they have to again reappear after 5 years. That situation doesn't apply to me. Once I am chosen as an IPS, I am here till my 60 years of my life. But that's not same with them. They have to appear every 5 years. And who will choose कि you will win or not? All of us. So invariably you can't help it. People will resort to mechanism which you may or might not like it. They have to come into the power. That's why IPS, IAS, IFS and the entire bureaucracy is made from the government, from the constitution. In constitution, article 312 clearly states that IAS, IPS, IFS, these are the all India services and only president can remove me. Okay. As per law, the state government or the central government, they cannot remove me, only president of India can remove me. So that's the protection constitution has given to us. I can tell you in my career so far in 7-8 years, the policy which I have followed,
local politicians or central politicians, whoever are, they are ultimately representatives of us. We have chosen them. Whatever things they are requesting or are telling, if they are correct and legal, I'll make sure that I'll get it done as fast as possible, because they are the representatives of the people. They have a aura, they have a respect in the society. But I am honest, I am with my integrity. If you are telling me anything illegal, I'll humbly say no. And I can tell you the kind of life which I have lived in Maharashtra for the past 7-8 years, not a single politician have called me for any illegal work. They might have called me my seniors or my subordinates, but nobody have called me for any illegal work. Just like we judge any subordinate, they also judge us. What kind of person is he? Okay, okay. So he's a no-nonsense person, impartial person, so there is no logic of calling him. So it's up to us what political pressure we want to take. And I always say that politicians, they are not our enemies. They are ultimately aiding in the development of the country. We have chosen them. So if they are having anything genuine, so for example, if a person is calling me and telling me, sir, this area mein chori zyada ho rahi hai, there is no ingenuity in this case. Obviously, he has a valid point. Then I'll make sure that whatever he is telling, I double my effort to get that thing done, because ultimately he is the representative of the society. So it's up to us. Matlab, till when you want to bear the pressure. I am telling, in my case, not a single call I have received in my 7-8 years. In this city, so I have not received any single call. They must have called my seniors or subordinates, I don't know. But they have never called me for any wrong work. It's up to us how we proceed. सर, तुम्ही मगाशी बोलताना सांगितलं की तुम्ही शाळेत असताना तुमच्यासोबत रॅगिंग झाली, तर आता समाजामध्ये जे काही अलिखित सत्य आहे तर त्याला तुम्ही कसं सामोरे जाता? येस, मी त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांना काय म्हणतो की माझ्यासोबत जे झालं आहे तो ठीक आहे, दॅट्स ए पास्ट. पण आता मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्यासोबत जे काय असं घडते, तुम्हाला जिथे तुम्हाला असं वाटते की हे मला आवडत नाही, आय एम देअर टू हेल्प यू आउट. जे काय झाला माझ्याशी, माझा हे प्रयत्न राहते की बाकी कोणाशी तसा होत नाही, त्याचा होऊ नये. आपण सगळ्यांची मदत करण्यासाठी पोलीस तत्पर आहोत. आणि माझ्या ऑफिस तो काय जवळच आहे. तुम्हाला कधी काय अडचण आली, तुम्ही मला येऊन भेटू शकता आणि मला सांगू शकता. यायला तुमच्याकडे वेळ नसेल तो दॅट QR कोड इज एव्हरीवेअर. यू कॅन जस्ट स्कॅन अँड देन सबमिट युअर फीडबॅक. आय विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ठीक आहे, बिकॉज वी हॅव लॉज, वी हॅव सिस्टम्स इन आवर कंट्री, वी हॅव अ प्रॉपर लॉ ऑफ अँटी रॅगिंग ॲक्ट where we can initiate criminal action against any person if they are doing ragging. But if you are not liking that thing, it's better you should report it. That's my suggestion. सर, क्वेश्चन ऐसे कि IPS ऑफिसर की यूनिफॉर्म से लेकर उनके काम तक, मतलब हर चीज़ हमारे लिए एकदम एक ग्लोरियस चीज़ होती है. जैसे कि हमारे लिए पुलिस कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ये हमें हर रोज़ की ज़िंदगी में दिखते हैं, लेकिन IPS ऑफिसर से कांटेक्ट बहुत रेयरली आता है. सर, आपको आपकी यूनिफॉर्म में यहाँ एक अलग कैप है, आपके पास अभी एक अलग कैप है, आपको एक सॉल्ट दी जाती है, या और आपके यहाँ पे 70 RR लिखा है. सर, इन सारी चीज़ों का मतलब मीनिंग क्या है? आपको सॉल्ट क्यों दी जाती है? ये अलग अलग कैप्स अगर आप बता पाए. यूनिफॉर्म में अभी इस यूनिफॉर्म में आप देख रहे हो कि मेरे माथे पे जो एम्बलम है उसमें IPS लिखा है. वंस यू जूम इट, इट्स बेसिकली IPS. एंड वी हैव बेसिकली राजमुद्रा, अपना सत्यमेव जयते का सिंबल ऊपर है हमारा. कंधे पे 70 RR लिखा है, बिकॉज RR स्टैंड्स फॉर रेगुलर रिक्रूट. बेसिकली सिंस इंडिपेंडेंस, अपना 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है 2017 में. तो अब लगा लो 70 RR, 70 साल हो गए हमारे आज़ादी को. तो आई एम ऑफ 70th बैच. अभी आई थिंक 76 RR चल रहा होगा. एंड देन इन आवर यूनिफॉर्म वी हैव, दिस इज कॉल्ड लेनियार्ड. फॉर IPS इट इज ब्लू, बट यू कैन सी माई सबॉर्डिनेट्स, दे आर हैविंग खाकी. जस्ट टू डिफरेंशिएट की हु इज IPS, हु इज नॉट, हमारे को ब्लू दिया हुआ है. कंधे पे भी है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस. एंड देन स्वॉर्ड तो यार इसमें है नहीं, स्वॉर्ड के लिए IG बनना पड़ता है. अभी IG नहीं बनाऊंगा. बट देन दैट्स बेसिकली रैंक हायरार्की. वी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टार. सिंगल स्टार इज बेसिकली प्रोबेशनर, द वन हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग. Then once we are in the field as SDPO, SDPO is basically DYSP rank. So 3 stars are there. Then we become additional SP, where I get this emblem, Satyamev Jayate emblem. And then additional SP and SP in Maharashtra is one and the same thing.
तो आई एम राइट नाउ ऑफ एसपी रैंक. तो once I am holding as a charge of DCP, one emblem is there, and when I get the charge of SP of a district, I'll use another star in front of it. So one emblem and a star, that's SP rank. SSP rank के लिए 2 stars plus emblem. DIG rank के लिए 3 stars plus emblem. IG rank के लिए sword आ जाती है. Sword is for very senior officer. Sword plus a star, and then ADG rank के लिए sword plus emblem. And the senior most IPS officer in the country is Director Intelligence Bureau, Director IB. He will have sword, Ashok emblem and a star. So that's how the ranking in policing works. सर दूसरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे मैं यानी कि 6 महीने से मैं बहुत सारे न्यूज़ भी पढ़ रही कि हमारे शहर में ड्रग्स का बहुत ये बढ़ गया है और ऐसे सुनने में आता है तो क्या बोलते हैं कि लोगों का ये है कि बहुत इजीली कुछ ड्रग्स की गोलियां मिलती है. तो मैंने अभी तक सुना नहीं कि पुलिस ने कहीं पर छापे मारे हैं या कुछ उसकी न्यूज़ हमें नहीं पढ़ाई मिली कि जैसे ये तो औरंगाबाद में बहुत सारे एजुकेशन प्लेसेस है कि जहाँ आजू बाजू में एक छोटे छोटे दुकान भी होते हैं. तो शायद ये जो युवा है औरंगाबाद शहर का तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत ड्रग्स का यहाँ ये हो रहा है. तो इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कर रही है मैम. हमने इसमें एंटी नार्कोटिक सेल बनाई हुई है ANC, जिसमें हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर पूरे पब्लिक को दिया हुआ है कि आपको कहीं पे भी दिखता है कि ड्रग्स का यहाँ पे सप्लाई हो रही है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे हमारे को डाल सकते हैं और हमारी टीम इमीडिएटली उसमें जाके रेड करेगी. आपने न्यूज़ नहीं देखी होगी बट ANC इस्टेब्लिश करने के बाद पिछले 3-4 महीने में बहुत सारी हमने कार्रवाई की है. उससे पहले उसके अलावा जोनल लेवल पे, मेरे लेवल पे हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम कार्रवाई करते हैं. बट ये कार्रवाई तो देखिए चलती रहेंगी. बट पॉइंट इज़ कि ड्रग का जो इशू है बेसिकली, जैसा कि मेरा हर जगह पे है, कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसका पुलिस एक एंगल होता है, पुलिस एक बेसिकली पार्ट ऑफ इट होता है. बाकी हमारे सोसाइटी, हमारा सोशल मीडिया, हमारी मूवीज़, आई कैन गारंटी, मतलब मैं तो मतलब इट्स मतलब हार्श ट्रूथ, बट ये कॉलेज है, इसमें स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद IIT में पढ़ा हूँ. आई नो व्हाट माई फ्रेंड्स यूज्ड टू डू एंड हियर ऑल्सो मैनी पीपल मस्ट बी डूइंग, दे मस्ट बी टेकिंग वट एवर ड्रग्स वगैरह वट एवर. और आसपास के दुकानों से कहाँ आता है सब बच्चों को पता रहता है. पॉइंट इज़ कि सब कुछ बॉइल्स डाउन कि हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है. मैं IPS बन गया, आई हैव नेवर टेस्टेड एनी ड्रग, ना मेरे को मन करता है ना ही मैं करने वाला हूँ. फॉरगेट अबाउट ड्रग, आई विल नॉट टेस्ट लिकर ऑल्सो जो मेरे बेसिकली मर्यादा के बाहर हो. तो मेरे माँ बाप ने जो मेरे को वैल्यू दिए हैं उसके हिसाब से मैं कर ही नहीं सकता. आप यहाँ रख भी दोगे तो भी नहीं करने वाला हूँ मैं. तो वो जो वैल्यू सिस्टम हमारी सोसाइटी में मिसिंग है, उसके कारण से ये होता है. अगेन अब ड्रग्स आप कह रहे हैं कि जो बटन है, बटन इज जस्ट ए गोली. यू टेल मी, आप मेरी जगह पे आ जाओ या फिर आप में से कोई भी मेरी जगह पे आ जाओ, हाउ कैन यू प्रिवेंट अ मेडिसिन टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर प्लेस. आपकी जेब में भी गोली हो सकती है, आपके बेड उसमें बैग में भी गोली हो सकती है, कोई डिसिप्लिन लेके जा सकता है, कोई पैरासीटामोल लेके जा सकता है. पुलिस कैसे उसको करेगी अनटिल एंड अनलेस कोई हमें ये बताए कि इस बंदे ने किया है, इस बंदे के पास है. पुलिस इज नॉट गॉड कि हमारे को गोली का पता पड़ जाए. लाइक तो एज लॉन्ग एज डिमांड इज देयर, सप्लाई विल बी देयर. आप उसे रोक सकते हो, रोकोगे तो जो चीज़ आपको 5 रुपये मिलती थी वो चीज़ आपको 100 रुपये मिलने लग जाएगी. बट अगेन जैसा मैं बोलता हूँ कि हमारे को, हम सभी अपनी सोसाइटी को वैल्यू सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें हम इन चीज़ों को, जो भी कोई करता है उसको हम अच्छे में ना लें. कॉलेजेस में मेरे को पता है कि जो कोई ऐसा करता है ही विल बी लाइक, मतलब उसकी रिस्पेक्ट अलग तरीके से देते हैं कि अरे वाह वो क्या. हमारे IIT में तो भंड वर्ड यूज़ करते थे, आप लोग भी क्या करते हैं पता नहीं. तो बट वो लोग फिर वहीं रह जाते हैं. हमें ये समझना पड़ेगा कि रास्ता आप गलत अगर चूज़ करोगे तो ज़्यादा दिन तक आप उस रास्ते पर रहने वाले नहीं हो. आपका अंत तो वही है, आप या तो किसी बीमारियों में जा रहे होंगे, या आपकी फैमिली में परेशानी हो रही होगी, या आपका फ्यूचर करियर ख़राब होने वाला है. पुलिस आएगी और उसने केस कर दिया तो वैसे ही ख़त्म हो गया, आपका पूरा करियर ही ख़त्म हो गया. बट अगेन आप सब स्टूडेंट्स हो, मेरा जो ऑफिस है, आप कभी भी मेरे को अप्रोच कर सकते हो. आपके एरिया में कहीं पे भी कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो पहले तो आप अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ऐसा ना करो.
क्योंकि पुलिस केस एक बार लग गया तो आपका फिर पूरा करियर उसी में चला जाता है। एंड ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने एथिक्स, अपने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज़ को इम्प्रूव कीजिए और अपने परिवार के बारे में सोचिए, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। ये सोशल मीडिया की लाइफ, ये जो फालतू जो मीडिया में दिखता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लॉस मेरा नहीं है, ये मान के चलिए। लॉस सिस्टम का नहीं है, लॉस गवर्नमेंट का नहीं है, लॉस आपका खुद का ही है। तो ये है मैम, कार्रवाई हम कर रहे हैं, बट अगेन कोई भी मतलब पूरे देश में ऐसा कोई भी आपको नहीं बोल सकता कि चलो मैं बंद करके दिखाता हूँ। बिकॉज आज इंडिया जो है, जोग्राफिकली मैं बताता हूँ तो इंडिया के लेफ्ट में आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान है, राइट साइड में आपका म्यांमार है, बीच में बांग्लादेश है। ड्रग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से, हम लोग सैंडविच हैं इसमें बीच में। इधर आपका म्यांमार है, तो इसको हम बेसिकली ट्रायंगल बोलते हैं, ऊपर वाले को इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। तो वहाँ से वो पंजाब आपने पढ़ाई है, अब पंजाब से धीरे धीरे चीज़ें नीचे आ रही हैं। इन सब का थैंक्स टू द सोशल मीडिया, सब हम देखते हैं बिंदास, उसमें कुछ भी दिखाते हैं। थैंक्स टू द मूवीज़ लाइक एनिमल्स, जहाँ पे इस चीज़ को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं और हम ही लोग देखते हैं। हम लोग उनको हज़ार करोड़ का पैसे कमा के देते हैं। तो गलती हम में ही है, गलती हम में ही। हम तो बस ये है कि कोई नहीं मिलता, चलो पुलिस को ब्लेम कर देते हैं कि चलो ये तो गाली खाने के लिए ब्लेम कर डालो इनको, पर गलती हम में ही है। Thank you, sir. Now the panel is open and even other students can ask the question, पर आपको hand raise करना पड़ेगा and then you'll ask the question. Meanwhile, अब तक आप बहुत शांति से सुन रहे थे और आपने जो भी सुना, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो रिपीट ना करें। मतलब अगर सर ने आंसर दे दिया है तो अगर वही आपका क्वेश्चन था तो प्लीज़ अवॉइड। मेरे को ये तो अच्छा लग रहा है कि कोई सोया नहीं। इसका मतलब मैंने ठीक ठाक तो बोल दिया है, नहीं तो मैं तो खुद अगर वहाँ बैठा रहता था, अरे कौन आएगा, कितना पकाएगा, सोना पड़ेगा ऐसे तो। पर कोई सोया नहीं तो चलो मेरे को अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोग सबको एंगेज करके मैंने रखा। पूछिए। आई हैव अ क्वेश्चन सर। सी आप काफ़ी यंग है सर एंड आपके डिपार्टमेंट में आपसे बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोग भी होंगे, आपके सीनियर भी होंगे, आपके जूनियर भी होंगे। एज डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस के साथ थॉट प्रोसेस में बहुत चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी काम करने में दिक्कत आती है। तो क्या आपने ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस फेस किया है कभी? यस, पुलिसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका एज के साथ आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो। हम लोग जो है यंग जनरेशन के, हमने सोशल मीडिया देखा है। अब मैंने तो आपको बताया, मैंने तो एग्ज़ाम ही उसी से क्लीन किया, मेरा कंप्यूटर ही मेरा दोस्त था, उसमें नोट्स बनाता था। हमारे जो सीनियर्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एरा के नहीं हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे वरिष्ठों के साथ मतलब उसमें हमारा बेसिकली डिफरेंस इन ओपिनियन होता है कि किसी एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मेरा ये रहता है कि यार कि हमारी जो वर्क फोर्स है, सपोज कीजिए मेरे जोन में मेरे पास 1000 लोग हैं, उस 1000 लोग को मैं चाहता हूँ कि उनकी क्षमता के हिसाब से मैं इस्तेमाल करूँ। कभी कभार मेरे सीनियर चाहते हैं कि क्षमता के हिसाब से नहीं, नंबर के हिसाब से, कि कोई अगर इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे 500 लोग भेज दो। आई एम ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। मेरे को लगता है कि उस सिचुएशन को कौन इंसान ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता है, उसको भेजना चाहिए। वो पहले वहाँ पे लोगों से बात करेगा एंड इफ सिचुएशन वर्सन्स अगर उसके अपडेट के बाद, तो देन वी विल पिच इन। सीनियर्स का कभी कभार क्या रहता है कि कुछ भी अगर हो गया, फॉर एग्जांपल कोई धरने पे बैठा है, कोई रास्ता रोको कर रहा है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कि उसमें 1000 लोग भेज दो। डीसीपी तुम भी खुद जाओ, एसीपी तुम भी खुद जाओ, पीआई तुम भी खुद जाओ। मेरा मानना ये है कि ये जो टाइम है मेरा, ये टाइम बेसिकली देश के लिए टाइम है, ठीक है। वो टाइम अगर मैं किसी एक फैसेट्स को जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं तो किसी का नुकसान कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई महिला मेरे ऑफिस में किसी रेप की तकरार लेके आई है, बट मेरे को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में एंगेज कर रखा है, तो उसका तो हैरेसमेंट हो गया ना। अब तो मैं हमेशा हर चीज़ को उस हिसाब से देखता हूँ कि कहाँ ज़रूरत कितनी है, उस हिसाब से आपको। जैसे मुझे लगता है कोई इशू है वहाँ पे पीआई मेरा हैंडल कर सकता है, तो लेट हिम हैंडल, ताकि मैं बाकी का काम कर लूँ। किसी जगह पे एसीपी की ज़रूरत है, तब एसीपी जाएगा ताकि मैं बाकी काम कर लूँ। फिर बहुत सारे होता है कि हमारी पुलिसिंग और हमारा गवर्नमेंट सिस्टम स्टिल वो रजिस्टर्स, वो आपका पेपर वर्क, उन सब में जी रहे हैं। तो वो मैं चेंज करके, उसमें मेरा हमेशा डिफरेंस इन ओपिनियन रहता है कि यार हम कौन से 2012 में जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैंने तब ये सारे सॉफ्टवेयर बना के मैं छोड़ के आ चुका हूँ, और स्टिल 2025 में जब 2012 जैसी जो हालत थी,
वैसी भी हालत नहीं है हमारे पास, स्टिल हमारे को छुट्टी के लिए वो अर्ज लिखना पड़ता है, ऑनरेबल सीपी सर एक दिन की छुट्टी दे दो, ठीक है, वो जाएगा, फिर वो उनका पीए पुटअप करेगा। कौन से एरा में रह रहे हैं? मतलब हर चीज़ डिजिटाइज है, आपके फ़ोन के थ्रू हो सकता है, आपके ईमेल्स के थ्रू हो सकता है, तो वहाँ पे मेरा हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तो कभी कभार सीनियर्स अप्रिशिएट करते हैं कि नवनीत बहुत अच्छा, तुम ये सब रेप्लिकेट करो, कभी कभार चिढ़ भी जाते हैं, तो ये दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब, तो ये करना ही कभी पड़ेगा। किसी हीटेड आर्गुमेंट के लेवल पे गया है ये चीज़? नहीं। आईपीएस इज अ डिसिप्लिन सर्विस, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट तो हम लोग करते ही नहीं है, हम पोलाइटली अपना पॉइंट, बट हाँ आई ऑलवेज मेक श्योर जो भी मेरा से है, मैं हमेशा यस मैन एटीट्यूड में काम नहीं करता। मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, मैं हम्बली पोलाइटली कि सर मेरा ये सबमिशन है, आपको पसंद है तो यूज़ कीजिए, नहीं पसंद है तो मत कीजिए, आप जो बोलोगे करना मेरे को वही है, एज लॉन्ग एज ही इज़ टेलिंग मी लीगल, मतलब इलीगल तो मैं खैर किसी का भी नहीं करता, एज लॉन्ग ही इज़ टेलिंग मी लीगल। अगर हमारे तरीकों में डिफरेंसेस हैं तो वो अगर बोलेंगे तो मैं करूँगा ही, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म जॉब, बट आई एम नेवर दैट यस मैन काइंड ऑफ पर्सन। मेरे को कुछ चीज़ गलत लगती है, आई से इट। सर आई वुड लाइक टू एड्रेस यू विद द इंसिडेंट जो कि अभी हाल ही में हुआ था, वेयर अ मराठा गर्ल मैरिड अ बुद्धिस्ट मैन एंड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द मैरिज उनके भाई ने दैट एक्यूज्ड के पेट में 7 टाइम्स स्नैप किया था नाइफ एंड ही वाज किल्ड. So what are your opinions on such incidents where people take law in their hands? People when they take law into their hand, तो law will take their hand, वो तो खैर समझ आने वाला है, मतलब तो ठीक है, that incident ठीक है, thanks for highlighting it. तो अगेन उसमें वो इंसिडेंट आपने अच्छा याद दिलाया, बिकॉज उसमें जर्नलिज्म सभी सब्जेक्ट उसमें आते हैं। तो फॉर अदर पीपल हु डोंट नो अबाउट दैट केस, देयर वाज अ गर्ल, she was a Dalit girl, and sit down, thank you, and there was a boy, he was from OBC background, and they both were in love. In the month of May, actually I forgot that month, they both went to Pune, they got married, शादी की, and then for a month we inquired कि where they were, and then we got to know कि they both have married, and then they came back to the police station, they intimated us कि ऐसे ऐसे हमने शादी कर लिया है, एंड देन बाय मेकिंग प्रॉपर स्टेशनरी एंट्रीज वी दैट गर्ल सेड कि आई डोंट वांट टू लिव विद माय फैमिली, आई वांट टू लिव विद दिस बॉय, एंड देन दे वेंट अवे. दैट whatever media has shown in it, I know कि media have shown Sairat, you must have seen, media have shown कि औरंगाबाद में Sairat टाइप का इंसिडेंट है, ये सब करके initially in first 10 days that person was alive. And for me, for a post like DCP, for us, attempt to murder comes at, third, fourth priority. The most priority crime is obviously murder. Then आपका genuine rape, then dacoity, robbery, attempt to murder. They are basically not the topmost priority for us. They comes at the second and third level. So in the initial 10 days, my in charge reported me. He told me कि भाई ऐसा ऐसा सर हुआ है. And he didn't told me about the gravity of the incident. He just told me, sir, some incident had happened where a person has stepped, and he never told me that it was an intercaste marriage and then situation can boil up. He never told me. So 10 days I was like, हाँ, some crime has happened, but the accused is absconding. We will arrest him. Till that time, the media was sleeping mode. In that time, in those 10 days, media was sleeping. It ठीक है, चल रहा है. 10th day he died. Entire media came up. अब स्टोरी मिल गई है, अभी तक स्टोरी नहीं थी, अब स्टोरी मिल गई है. दे स्टार्टेड टेकिंग वीडियो स्टेटमेंट ऑफ गर्ल, दे स्टार्टेड कलरिंग दैट इंसिडेंट इन योर सैराट मूवी इंसिडेंट. नाउ टेल मी, अगर वो सैराट इंसिडेंट था तो 10 दिन पहले भी था, बराबर? तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो था या नहीं था, वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट 10 दिन पहले भी तो था. 10 दिन से उनको कोई मतलब नहीं था. उनको कब मतलब हुआ? जब वो बंदा गुजर गया. अब उन्होंने उसको वायरलाइज कर दिया पूरे महाराष्ट्र में. देन माय सीनियर्स कॉल्ड मी कि नवनीत व्हाट आर यू डूइंग, एंड आई वाज लाइक कि ओके सर, मतलब देन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई टुक रिव्यू ऑफ माय पुलिस स्टेशन स्टाफ कि भाई टेल मी व्हाट ऑल यू हैव डन. आई फाउंड आउट कि दे हैव नॉट डन इनफ फॉर द इन्वेस्टिगेशन. देन आई मेड एवरीथिंग, एवरी फंक्शन ऑफ माय टीम रनिंग. I told कि these all people I want by tonight in my police station. So they all were. I told कि भाई I want the mother, the wife of the accused in the police station. I want to interrogate them.
Then we got to know कि those every person have already fled. They are not there. So then I sent my team to Jalna, Nagar, Pune, everywhere I sent, and by within 24 hours I got everyone in the police station. Obviously they are not accused, but because to reach accused we have to follow, because they must have contacted them. Then it started pinching the accused. कि भाई his wife is sitting there, मतलब she don't have, she is not the culprit, she is sitting there. And then I am telling you, within 24 hours that guy automatically surrendered in front of us. कि भाई please spare our family. So we arrested him. I interrogated him personally, and he clear cut told me, sir, it's not about Sairat. मतलब ये भी रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना? हाँ, तो उसमें there it was basically that person who got married and this person, it's basically इन दोनों का enemy वाला था. मतलब he used to tell him कि देखा तेरी बहन को मैं लेके चला गया, तू क्या करता था, इस तरीके से he used to tease him. And then वो जो दूसरा था, he was already of politic, थोड़ा सा criminal background, कि मेरे को ऐसे बोला मेरी बहन को, उसकी तो डायरेक्टली बहन भी नहीं थी ना, उसकी तो सगी बहन भी नहीं थी. और जब उसके पिताजी को कोई इशू नहीं है तो तुम्हें क्या इशू? मैं यही बोला कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत थी, तो तुम तो उसके पिता भी नहीं हो ना सगे भाई हो, तुम्हें क्या दिक्कत थी? बोला नहीं सर, वो मेरे को हर जगह चिढ़ाता था कि वही तेरी बहन को ले गया ना, तो क्या ही करता रह गया. दिस वॉज द रीज़न. तो ये एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट ये है. बट अगर आप मीडिया में, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट स्टोरी मिलेगी. ये था उसमें सच. So currently the traffic rules in Chhatrapati Sambhajinagar are not up to the mark. Like traffic signals are not working at specific locations, and then two-wheeler drivers are not wearing helmets. Even some policemen are there, like we can see they are not wearing helmet. Seat belts are not used by the four-wheeler drivers. So what is Aurangabad police doing it? Good question. Sir, also one question. What is your daily motivation when you? Okay. That's a very good question. The traffic system of our city, I accept it. It's not in the good hand. It's not in the good state. But I also, because as a zonal DCP, traffic is not my work. For traffic, we have a separate DCP. He sits in the headquarter. Whatever traffic policemen you see, they all report to him. So I look after the crime and law and order of my area. So traffic is normally not my work. But as a policeman, I can see the traffic is not in the good state. There are several factors. So I'll discuss one by one. Number one is police. You can say the police is one of the important factor, because police normally controls traffic. People are afraid of police. Now the police, what we have strength right now. I am telling you the facts which you have to introspect. What is the actual state? We have a workforce of around 3,300 police force, city police. In those 3,300, traffic police is around 250, 300, 250 से है ना ट्रैफिक में, कितने हैं? 3 से 350 policemen are in traffic. Now you tell me, 350 policemen, we have to ensure their weekly off, we have to ensure their 8-hour duty, we have to ensure every nook and corner of the society is covered. Do you feel 350 are enough? No. And traffic is a engineering subject. आपकी रोड की विड्थ कितनी है, आपने जो लेफ्ट टर्न बना रखे हैं वो फ्री है, बट उसमें आपने बराबर चौड़ाई दी है कि नहीं दी है, आपकी जो रेड लाइट है वो यहाँ से दिखने में दिखती है कि नहीं दिखती है, आपने बराबर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है कि नहीं बनाई है, आपकी रोड की चौड़ाई कितनी है, जहाँ पे भी आपने ट्रैफिक लाइट नहीं लगा रखी वहाँ आपने ट्रैफिक लाइट लगाई है कि नहीं है. ट्रैफिक इज ए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, यहाँ पुलिस सिर्फ एक फैक्टर है, आपकी रोड अच्छे से डिज़ाइन है कि नहीं है. I'll tell you example of Kota. Have anybody of you gone to Kota? Yes. Kota is the only city in our country where they have traffic policeless society. Every intersection is converted into roundabouts. Every intersection is either basically subway और आपका ब्रिज है, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं देती आपको. Everything is running at itself. Why? Because of the political leadership, because of the leadership of the bureaucracy, politicians, कि they have ensured कि Kota city is made like this. तो हम सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा. हमारा ही इंसान जब मुंबई में जाता है तो हेलमेट लगा लेता है, सीट बेल्ट भी लगा लेता है, यहाँ क्यों नहीं लगा सकता भाई?
बिकॉज आपको लगता है कि यहाँ पे पुलिस नहीं देख रही है, तो हम खुद से ही डिसिप्लिन नहीं है, बट हम कोसते किसको, पुलिस को है कि तुम करो। अब एक पुलिसमैन जो हमारा एक चौराहे पे खड़ा है, तुम खुद बताओ कितनी गाड़ी चेक कर सकता है। हाँ, अब चौथा फैक्टर बताता हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में पहले प्रोविजन क्या था कि आप वहीं पे जगह पे फाइन लेते थे, अभी डिजिटल फाइन का आ गया है। एंड यू नॉट बिलीव लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ फाइन इज पेंडिंग। हमारे लोग पैसा नहीं देते हैं, तो आप चालान लगाते हो, पैसा वो दे नहीं रहा है, ना उसका लाइसेंस आप ले पाते हो, ना उसकी गाड़ी रोक पाते हो, तो डेटरेंस कहाँ से आएगा। तो इसलिए इट्स बेसिकली बिग सब्जेक्ट जो पहले पुलिस, अब हाँ अगर आपने पुलिस को इसमें ज़्यादा पावर दे दी तो आपको पता ही है कि हमारे लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पे बैलेंस लाओगे। तो ये ट्रैफिक का इशू है, बट अगेन इट्स बेसिकली ट्रैफिक को अगर हमारे शहर को सॉल्व करना है तो द पॉलिटिकल लीडरशिप, नगर पालिका, पुलिस, दे ऑल हैव टू पिच इन। जहाँ पे आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने जरूरी हैं, आपके कैमराज, ऑटोमेटिक ई चालान के कैमराज लाने जरूरी हैं, रेड लाइट्स लाने जरूरी। जस्ट मेरा डीसीपी ऑफिस में ही रेड लाइट नहीं है सेंट्रल नाका पे, बहुत बार तो मेरे को ही शोर सुनाई देता है बिकॉज कुछ है ही नहीं वहाँ सिस्टम। तो ऐसे हर एक जगह को आइडेंटिफाई करके हमारे को वर्क करना पड़ेगा, जो कि पुणे मुंबई ने किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे बेटर है। हाँ, डेली मोटिवेशन, मतलब डेली मोटिवेशन इज जस्ट यार, मतलब ऐसे मैं क्या बोलूँ, पुलिसिंग में हमारी हर दिन ही एक नया दिन होता है, हर दिन हमारा एक अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग कुछ सीखने को मिलता है। तो ये खाकी रंग ही ऐसा है कि जैसे आप शीशे के सामने इसको डालते हो, डिमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब खाकी रंग डालते ही आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं ना वो बढ़ जाती हैं, तो आप समाज के लिए काम करने की इच्छा, आप जहाँ पे भी, जैसे मेरी लाइफ में आप देखोगे तो जैसे मैं ये खाकी हटा देता हूँ और मेरा नॉर्मल अटायर में आ जाता हूँ, आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। तो वहाँ पे आई एम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बट जैसे ही खाकी आ जाती है तो आपको हर एक चीज़ याद आने लग जाती है, समाज में दिक्कतें दिखने लग जाती हैं, ये दिक्कत है इसको सॉल्व करनी है, ये दिक्कत है उसको सॉल्व करनी है। और आप, पुलिस इज सच ए गुड जॉब ना, कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलता है, अनलाइक अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे आप करते हो उसका रिजल्ट 5 साल बाद मिलेगा। मुझे अगर है कि भाई एमजीएम के सामने ट्रैफिक का कुछ सॉल्व करना है, इमीडिएटली पूरी वर्कफोर्स लेके जाऊँगा, 100 लोग अभी के अभी शाम तक सारा साफ हो जाएगा। ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वो मोटिवेशन मेरे को रहता है, तो ये है जो हर दिन मेरे को चार्ज अप रखता है। सर, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा आता क्राईम खूप वाढत आहे. मला वाटतं छत्रपती संभाजीनगरचीच घटना असेल की एका रूममध्ये 2 मुली राहत होत्या, तर त्या मुलीनं दुसऱ्या मुलीला फेक अकाउंट बनवून मेसेजेस पाठवले आणि मग त्याच्या माध्यमातून ती जी दुसरी मुलगी होती तिला वाटलं की हा दुसरा मुलगा आहे बहुतेक, तसंच काहीतरी प्रकार होता आणि त्याला खूप दुःख झाले आणि त्याच्यामुळं तिनं आत्महत्या केली. आणि अशाच घटना बाहेर पण आता दिल्ली साईडला सुद्धा अशा घटना खूप घडल्या. ठीक आहे, अभी तुम्हाला हे खरं सांगतो, क्राईम जो आहे, क्राईम अँड सोसायटी दे मूव्स टुगेदर. ठीक आहे, क्राईम इज अ पार्ट ऑफ सोसायटी. प्रत्येक माणूसचे सोचण्याची, त्यांचे काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. तो क्राईम सोसायटीमध्ये असणारच आहे. क्राईमला प्रिव्हेंट करण्यासाठी, डिटेक्ट करण्यासाठी, इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी आम्ही आहे. बट क्राईम कोणती सोसायटीमध्ये कोणता राहणार ते सोसायटीचे डेव्हलपमेंट सांगते. आता सोशल मीडिया वाढलेला आहे, इंस्टाग्राम आहे सगळ्यांकडे, फेसबुक आहे. ऑब्वियसली ते जो म्हणजे आपले जो खराब जो आपली सोसायटीचे मेंबर्स असते तर त्याला गैरवापर करणारच आहे. तो त्यामध्ये आपल्याला स्वतःला एज्युकेट करावं लागेल. सोशल मीडिया आणि रिअल लाईफ, जे आपण म्हणतो ना रील आणि रिअल लाईफ, तो रिअल लाईफ इज टोटली डिफरंट. आपण रील लाईफमध्ये घुसून ते जे सांगतात तसाच आपण करतात. तो सोशल मीडियाचा क्राईम वाढलेला आहे आणि ते वाढणारच आहे. बिकॉज इंडिया, वी आर प्राऊड टू से की द डिजिटल पेनिट्रेशन इन आवर कंट्री इज इमेन्स. प्रत्येक नूक अँड कॉर्नर गावामध्ये आता सगळ्यांकडे मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, फ्रीली इंटरनेट अवेलेबल आहे. पण इंटरनेटमध्ये काय बघायचे आहे, काय नाही बघायचे आहे, कसं वापरायचे आहे, बँकिंग सिस्टम कसं करायचे आहे, सोशल मीडियामध्ये काय काय कसं क्राईम करतात, जोपर्यंत हे सगळी माहिती लोकांना नाही तोपर्यंत त्याचा उपयोग नाही. ठीक आहे, आपले लोक म्हणजे एज्युकेशन पेक्षा हा सोशल मीडियामध्ये घुसलेले आहे. अगेन आय से की इट्स अ सोसायटी अँगल. तो क्राईम तो होणारच आहे, पण त्याला आपल्याला लोकांना एज्युकेट केलं पाहिजे. आम्ही तो करतात सोशल मीडिया माध्यमातून. मी बरेच व्हिडिओ शेअर केलेली आहे जिथे
क्राईम होतात की मी पोलीस आहे, आई मी पोलीस आहे, समोर चेकिंग चालू आहे, तुमच्या जे दागिने आहे मला द्या नाहीतर चोरी होणार, आणि तो ॲक्च्युली फेक माणूस आहे. तो त्या प्रकारच्या लोकांना एज्युकेट करण्यासाठी मी तसे व्हिडिओ काढले होते. तो हळूहळू म्हणजे सगळ्यांतर्फे, तुम्ही जर्नलिस्ट आहे तर तुम्हाला मीडिया मार्फत लोकांना एज्युकेट करावं लागेल, मला पोलीस मार्फत एज्युकेट करावं लागेल. तो एज्युकेशन इज द की. जोपर्यंत आपल्याला माहीतच नाही की कसं सेव्ह करायचं आहे तो आम्ही बळी पडणार. Last question. Last question. So I have one comment and one question. First, I will start with the traffic issue. I always say this: like in traffic, there are three things that can make traffic run smoothly. That is tolerance, patience, and discipline. That is self-discipline. Like when you are on traffic, know that I am not the only person on this road. There are 2-wheelers, 4-wheelers, animals, and other people also. Have that in mind and be patient. Self-discipline. Know that if I don't put on helmet or seat belt, if accident occur, you will suffer first before police or doctors come. And then the third thing is that, like, you always have patience. Be patient and respect the traffic rules. Then I think all of us, if we practice this, and we'll be able to have a smooth traffic. So, I have a question, sir. Like, do you people implement community policing? Because I want to know the relationship between that authority and the higher authority. That is community policing. Yes. Thank you for the questions. We have community policing as one of the important factor in our policing. From Director General of Police Office, there are around 15 schemes which we have already implemented. Police Kaka, Police Kaki scheme, where for every institute, every school, there is a police guardian who goes there. His number is displayed there. He talks with the people, interact with the students, and whatever issues the students are facing, it is brought into the highlight of that person. Then we have student police cadet program, where we actually trains cadets till 8th standard regarding NCC, parade, basically police mechanism, where we train them. We have several Mohalla committees. We have Mahila Dakshata Samiti. We have a scheme for senior citizens, and likewise. I mean, I can tell you we have community policing schemes, maybe more than 20 in number, where we interact from the society, we interact with the society, and we try to listen them and help them. Maharashtra Police, I can proudly say, it's basically people's police. We, whatever instructions we get from our seniors, from DG office, from our bosses, it's only to help the people. Never ever we get any instructions you be away from the people. Even a single incident where 30-40 people have gathered at a particular point, we go there, we listen to them, we help them. So we are there for the people, and I can proudly say that Maharashtra Police is one of the best police of the country, and we always try to mingle with the society and help them out. Thank you so much for your questions and such clarifying answers, sir. Now I request Rekha Sharke ma'am to please come on the stage to deliver vote of thanks. सर धन्यवाद. कारण माझ्याकडे तुमचा धन्यवाद करण्यासाठी खूप शब्द अपुरे आहेत. कारण गेली आपण 12:30 वाजल्यापासून ते आता 2:30 वाजेपर्यंत म्हणजे सरांची स्टोरी खूप इन्स्पायरिंग होती सगळ्यांसाठी, तुम्हा सगळ्यांसाठी. आणि बाकी जे काही क्वेश्चन होते ते एकदम शहर तुमच्या अवतीभवती आणि सरांचं तुम्हाला जे मेसेज मिळाला तर मला वाटतं की हे खूप या सेमिस्टरमधला स्पॉटलाईटमधला खूप चांगला अनुभव तुम्ही सगळ्यांनी घेतला. त्याबद्दल सरांनी जो काही वेळ काढला आहे त्यांच्या प्रशासनामधून तर त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. असंच आमच्याशी असेच आम्हाला मार्गदर्शन करत राहा सर, जिथे कुठे असाल तिथे, महाराष्ट्राच्या बाहेर. मी फक्त एक
शेर इथे सरांसाठी हे करते. हिमालय से ऊंचा साहस उनका, हिमालय से ऊंचा साहस उनका, सर जो किसी के आगे न झुका, सर जो किसी के आगे न झुका, मातृभूमि के खातिर किया सब अर्पण, ऐसे वीरों को मेरा नमन.